السلام علیکم۔ محبت کی شادی کا انجام کا یہ لاسٹ پارٹ ہے، پارٹ 3۔ بیان میں ہم یہ جانیں گے کہ بھاگ کے شادی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیاوی ذلت کیا ہوتی ہے اور ان کے لیے دینی نقصان کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن میں کیا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے اور اس طرح کی شادی کے لیے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں یہ شادیاں کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ماں باپ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اپنی بات نہیں کہہ پاتے، ان کو یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ سخت ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں کے وہاں ایسے شادی نہیں ہوتی تو شادی نہیں ہو پائے گی، اور ہم لوگوں کو پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، تو جو ہے ہمیں جو ہے شادی کرنی ہے تو ماں باپ سے چھپا کے، ماں باپ کو بنا بتائے، کیونکہ وہ پابندیاں لگائیں، اس سے اچھا ہم بھاگ کے شادی کر لیں۔ ایک تو دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے میل ملاقات کی ہوتی ہے اور جو ہے وہ لوگوں نے اپنے رشتے کو جو ہے پہلے ہی سب کچھ کر لیا ہوتا ہے، اور جو ہے اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم نے کر لیا ہے، اب تو ہمیں شادی کرنی پڑے گی، تو جو ہے وہ لوگ جو ہے بھاگ کے شادی کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہے لیکن ماں باپ نہیں مان رہے ہیں اور ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، کچھ میل ملاپ بھی نہیں کیا ہے، نہ ملنا جلنا کیا، لیکن ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ شادیاں جو ہیں زیادہ تر جو ہیں بہت سے جو دینی ہوتے ہیں بچے، لیکن جو ہے غلط راہ پہ آ جاتے ہیں اپنی پسند کے لیے، کہ مطلب انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب شادی کے بعد کریں گے، لیکن وہ لوگ جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں اور ہمیں شادی کرنا ہے اور محبت جو ہے اور شادی میرا حق ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بھی بھاگ کے شادی کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں یہیں سے جو ہے شیطان بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ سورہ الاسراء میں قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور لوگوں سے فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بے حیائی اور بری چیز ہے۔ تو جو نوجوان پیار میں سب کچھ کر لے جاتے ہیں تو شیطان یہیں سے راستہ بناتا ہے، اور اللہ پاک نے سورہ الاسراء میں منع بھی فرمایا ہے، لیکن جو لوگ سب کر لیتے ہیں تو جو ہے شیطان ان کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تو ہے کہ اب تو شادی کرنی ہی پڑے گی کیونکہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے اور اب ہمیں اسی سے شادی کرنی پڑے گی، اور یہ جو ہے اگر نہیں کیا تو بہت بدنامی ہوگی اور گناہ بھی پڑے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ہمیں، اور ہمیں شادی کرنا چاہیے، اور گھر والے نہیں ماننا ہے تو ہمیں بھاگ کے شادی کر لینا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں شیطان یہ ڈالتا ہے اور یہ بھی ڈالتا ہے کہ ایسے تو معاف نہیں کرے گا اللہ، لیکن یہ کریں گے اگر ہم بھاگ جائیں گے تو جو ہم نے گناہ کیا بھاگ کے شادی کر لیں گے وہ نیکیوں میں بدل جائے گا۔ یہ سب شیطان ڈالتا ہے، شیطان جو ہے مایوس کرتا ہے اللہ پاک سے، جبکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں بہتر کی، تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اللہ پاک نئی راہ ان کے لیے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو جو بچے جو ہیں میں ان سے کہنا چاہتی ہوں، جو پیار میں محبت میں کچھ کر لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ کر لیا ہے، اب ہمیں شادی کرنی پڑے گی اور ہمیں معافی بھی نہیں ملے گی، اس گناہ کو شادی کر کے ہی صحیح کرنا، تو یہ بات اپنے طریقے سے ٹھیک ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں اور آپ جو ہیں بھاگنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک بات یہ سوچنا چاہیے، جب اللہ نے فرما دیا اللہ پسند کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اللہ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو کہ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اس سے بہتر کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ جو ہے پردہ بھی ڈالتا ہے وہ پہ، اور جو ہے گناہ کو جو ہے اللہ پاک آپ کے جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے اس گناہ پہ، اور آپ کو جو ہے شرمندہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک توفیق بھی دیتا ہے ہدایت کی، اور نئی راہیں بھی کھول دیتا ہے، اپنے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ سے مایوسی کا وہ کر کے جو ہے بندوں کو غلط راہ پہ ڈالتا ہے، بھٹکاتا ہے شیطان دل میں وسوسہ ڈال کے۔ بزرگ نے کہا تھا، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ دو سیاہی جو ہے ایک ساتھ اکٹھی مت کرو، مطلب اگر آپ نے ایک گناہ کر لیا ہے تو اب جو ہے شیطان کے بہکاوے وسوسے میں آ کے جو ہے دوسرا گناہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ کہ مطلب دو سیاہی ایک ساتھ اکٹھا مت کرو۔ تو جن کو سمجھانے والا، جن نوجوانوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا اور جو کیا کہتے ہیں دین سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا،
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किया होता, सिर्फ अपनी पसंद की शादी करने पे अड़े होते हैं और वो ये चाहते हैं कि माँ बाप किसी तरह नहीं मानेंगे, तो वो जो है अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि माँ बाप किसी तरह नहीं मानेंगे, हमें भाग के शादी करना चाहिए, तो वो लोग जो है भाग के शादी कर लेते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, और तुम हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत का निकाह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उसके वली की इजाज़त ना हो। वली की इजाज़त के बगैर जो निकाह होगा वो निकाह बातिल होगा। अबू दाऊद की हदीस है। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत किसी औरत का निकाह ना कराए, इब्ने माजा। तो ये हदीसों से पता चलता है, कुरान की सूरह बकरा में जो आया है उससे पता चलता है कि तुम जो हो हक़ को जो है बातिल के साथ मत मिलाओ। कि मतलब जो लोग ये सोचते हैं ना कि यहाँ पे जो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी मोहब्बत जायज़ है और ये हमारा हक़ है, तो जो है इस तरह से शादी ना करें कि माँ बाप की रज़ामंदी के बगैर शादी। एक तो निकाह बातिल होगा, दूसरा ये है कि आप हक़ को बातिल के साथ मिला रहे हैं, मतलब जो गलत चीज़ है उसको सही चीज़ के साथ मिला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह भी होगा और ऐसी शादियों में बरकत नहीं होती है। सूरह तलाक आयत नंबर 2 में है कि और जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह पाक उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। अगर माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे हैं आपकी शादी पे, या आपको लगता है माँ बाप राज़ी नहीं हो, तो भाग के शादी मत करें, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान है, एक गुनाह भी है और माँ बाप से दूरी भी, परिवार से इंसान फैमिली से कट भी जाता है। और दूसरा एक माँ बाप के राज़ी ना होने का एक ये भी है कि शायद अल्लाह पाक इस रिश्ते में खैर नहीं देख रहा हो, अल्लाह की मर्ज़ी ना हो इसमें, और इसमें कोई खैर ना हो इस रिश्ते में, तो जो है अल्लाह पाक जो है नए रास्ते मुसब्बबुल असबाब है, नई राहें खोलने वाला है, तो इसमें जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी समझ भी लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है शायद इसीलिए ना ही करवाता है बार-बार कि शायद उसमें खैर नहीं है, आपको जो है बुरे रिश्ते से दूर रखता है, बेहतरीन की तरफ ले जाता है। अल्लाह इसमें खैर नहीं देख रहा, शायद आगे इससे भी बेहतर रिश्ता हो। भाग की शादी करने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो लड़की को होता है। लड़की को क्या क्या नुकसान होते हैं भाग के शादी करने से? पहला नुकसान तो यही होता है कि वो जो है अपने माँ बाप से दूर हो जाती है, मायका उसका कट जाता है, और फिर जो है उसको कोई भी ससुराल में परेशानी होती है तो उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। दूसरा, ससुराल जब वो भाग के शादी करती है तो सिर्फ उसकी बेइज्जती उसी दौरान तक नहीं होती कि वो भाग गई तो बस हो गई बेइज्जती, उसके मायके में हो गई या जहाँ रहती थी वहाँ बेइज्जती हो गई, ज़िल्लत सहनी, उसको ससुराल में भी ज़िल्लत सहनी पड़ती है। और यहाँ तक कि जब वो मर जाती है ना, कि जब उसकी मौत हो जाती है, यहाँ तक कि दादी नानी भी बन जाए तब भी मर जाती है ना, तो भी जो है उसकी नस्लों को भी लोग इसी तरह से किसी से मिलवाते हैं कि अरे ये वही है, जैसे कोई पोता है किसी का, तो वो यही कहेंगे अरे ये इसकी दादी भाग के आई थी, इसकी माँ भाग के आई थी, इसकी नानी भाग के आई थी, इसकी खाला भाग के आई थी, जो भी है इसी तरह जो है इस तरह से लड़की को जो है याद किया जाता है नस्लों तक, आगे की ज़िंदगी तक। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा ये होता है कि माँ बाप का दिल दुखता है, उनकी बेइज्जती होती है कि भाग गई लड़की, तो जो है ये होता है कि बाद में भी वो जो शादी होती है वो खुशहाल नहीं रहती, उसमें बरकत नहीं होती है। एक लड़की को डर भी लगा रहता है और उसकी ससुराल में इज़्ज़त नहीं होती। कोई भी बात करती है, कोई भी कुछ बताती है तो उसकी जो है अमल को, उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, चाहे वो अपना जितना भी मोहब्बत में काम कर ले, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, मतलब उसकी बात की भी अहमियत नहीं होती है। तीसरी बात ये होती है कि औलाद नहीं होती है, कुछ लड़कियों की औलाद नहीं होती जो माँ बाप का ज़्यादा दिल दुखाती हैं, जिनके माँ बाप बद्दुआ दे देते हैं। और चौथी ये बात कि अगर औलाद नहीं होती है तो ससुराल वाले ये कह के दूसरे से लड़की से शादी करा देते हैं कि जो है औलाद के लिए शादी कर लो, और कहीं कहीं पे तो माँ बाप ये भी कर देते हैं कि अच्छा तुमने अपनी मर्ज़ी से कर ली, अपने बेटे से कहते हैं तो अब हमारी मर्ज़ी से कर लो, अपने ख़ानदान में कर लो। तो इस तरह जो है लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं हो, तो कोई भी मसला हो सिर्फ भाग के आई हुई लड़की पे शक जाता है। दूसरा ये होता है अगर उसके साथ कोई गलत काम कर रहा है या गलत नज़रें कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, तो वो जो है लड़की ही पे शक जाएगा और लड़की का कोई साथ नहीं देगा, और सब सोचेंगे तू पहले से गलत थी तो अब भी तूने ही गलती की होगी अगर कोई भी कुछ करे, क्योंकि लड़कियों कहीं भी महफूज नहीं होती हैं। तो जो भाग के जाती हैं तो वो तो बिल्कुल महफूज नहीं होती है, उनको तो बिल्कुल भी साथ कोई नहीं देता अगर उनके साथ कोई गलत हरकत, गलत काम होता है।
कहीं कहीं दहेज के लिए भी परेशान किया जाने लगता है, और जो है ये भी होता है कि गुनाह का बोझ तो अलग होता है, दहेज के लिए भी। तो इतना सारे नुकसानात होते हैं ये जो है लव मैरिज के और भाग के शादी करने के, कि लड़की को इज्जत नहीं मिलती, चाहे वो अपना सब कुछ लगा जी जान से काम करे, वहाँ पे जाके इज्जत से रहे, तब भी उसको हर जब भी मौका मिलता है लोग जो है ताने देते हैं, शक्की नज़रों से देखते हैं। तो भाग के शादी करना इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। दुनियावी और दीनी नुकसान भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या नौजवानों को नुकसान झेलने पड़ते हैं, और ज़िल्लत अलग होती है, उनके बच्चों को अलग इज्जत नहीं मिलती है। तो ये सब होता है। ऐसे मसले क्यों आते हैं, क्यों होता है कि बच्चे भाग जाते हैं? तो ये सब दीन की कमी से होता है, और माँ बाप की अना की वजह से होता है, और बच्चों को दीन की जानकारी नहीं होती है, और दीन में जो है उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। उन्हें बस इतना पता होता है कि नमाज, रोज़ा, कुरान कर लिया, त्यौहार मना लिए, और उनको कुछ नहीं बताया जाता है। और माँ बाप भी फ़ख्र समझते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के बच्चों को, या स्कूली तालीम आगे ज़्यादा दुनियावी तालीम दिला के उसी में फ़ख्र समझते हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं कि दुनियावी तो ठीक है, लेकिन दीनी जानकारी भी होना चाहिए, और उस पर भी फ़ख्र करना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस्लाम में जो है शादी का क्या तरीका बताया गया है, निकाह का क्या तरीका है, और ना ये पता होता है कि पसंद की शादी किसे कहते हैं इस्लाम में, ये सब कुछ पता नहीं होता। अच्छा, जो नौजवान नई नस्ल के लड़के लड़कियां होते हैं वो लोग जो हैं ये सोच लेते हैं कि मोहब्बत जायज़ है, मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, और मोहब्बत जो है हम जो हैं जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से शादी करें। अच्छा, इस चक्कर में जो है जब माँ बाप जो हैं बहुत से तो इतनी दूर दीन से दूर होती हैं लड़कियाँ कि अगर किस माँ बाप मुसलमान से करने को मना करते हैं तो वो लोग जो है क्या करते हैं, हिंदू को पकड़ लेती हैं और हिंदू से जो है शादी कर लेती हैं। तो ये सब दीन की कमी है, माँ बाप की नज़र ना रखना, ये सब होता है, और लड़कियाँ इस चक्कर में मुर्तद भी हो जाती हैं। ये देखिए कानपुर वाला केस में भी क्या हुआ, राज़ी हो गए थे, ठीक है माँ बाप राज़ी, लेकिन थी तो लव मैरिज ना, थी तो मोहब्बत की शादी ना। तो जिस इंसान से आपने इतनी मोहब्बत की, इतना चाहा कि उसके लिए अपने माँ बाप को राज़ी किया और लव मैरिज की, उस इंसान ने आपको क्या दिया? दूसरी लव मैरिज में क्या हुआ, उनको दूसरी उनकी सौतन आ गई, पूरे में उनकी ज़िल्लत हुई कि और जगह वायरल हो गया ये वीडियो, और जगह भी पहुंच गई कि जो है लव मैरिज करके इन्होंने शादी की थी। अगर किसी को ना पता हो तो उस वक्त छुपाया गया हो कि लव मैरिज नहीं है ये, तो ये सब क्या हुआ? दुनियावी ज़िल्लत भी हुई, दीनी नुकसान भी हुआ। ऐसी शादियों से क्या मतलब? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अरेंज मैरिज में भी तो ये सब होता है। हाँ, अरेंज मैरिज में होता है, लेकिन अल्लाह फिर जो है जो अल्लाह की मर्ज़ी से कर दे तो अल्लाह उनके लिए नेक राहें भी तो खोलता है, लेकिन जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जाके करते हैं तो फिर उनको ज़िल्लत भी उठानी पड़ती है। अरेंज मैरिज में इतनी ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ती है, क्योंकि सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बच्चे के साथ जो है गलत हुआ। लव मैरिज में अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है, शादी नहीं पाती, तो नहीं कहते कि इसके साथ गलत हुआ है, लोग ये कहते हैं ये ऐसी थी, इसका यही अंजाम होना था, ये सब कहते हैं। तो मोहब्बत से बड़ी क्या होती है? इज्जत, और इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसके बाद ही मोहब्बत होती है। सबसे पहले मैं उन वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की अगर आप बचपन में तरबियत नहीं कर पाएँ, ध्यान नहीं दे पाएँ, तो जो है उनके बड़े होने पे उन पे ध्यान दीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, उनको बताइए कि इस्लाम में क्या आया है शादी के लिए, इस्लाम में किस तरह शादी की इजाज़त है, कौन इस्लाम कैसी पसंद की शादी को मानता है, और उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे मशवरा करिए, और सही उम्र पे उनकी वक्त पे शादी कीजिए, और उनसे पहले ही जो है सब कुछ पूछ लीजिए। बच्चों से दोस्ती करके या किसी और के ज़रिए, कोई घर में हो, बड़ा हो, जो बच्चों से दोस्ती हो, आप नहीं पूछ सकते तो बच्चों से पूछ लीजिए, और उसी तरह का रिश्ता ढूंढना चालू कर दीजिए कि जब वो उम्र आए शादी की तो वो लोग जो हैं शादी के लिए हामी भर सकें, और उनको लगे हाँ मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी मेरे लिए बढ़िया जो है हम सफ़र ढूंढा है, ठीक है। और जो है दीन से दूरी इसकी वजह, तो दीन पे जो है उनको बताइए, दीन सिखाइए, किस तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम में बताया गया। बताइए कि नाम के मुसलमान मत बनो, और भाग के शादी करना, लव मैरिज के क्या क्या गुनाह हैं और क्या क्या ज़िल्लत झेलनी पड़ती है, ये सब बताइए। याद रखिए, खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद मोहब्बत नहीं होती है, ईमान, तक़वा,
सम्मान और अल्लाह की अताअत होती है। ना भाग के शादी जायज़ है और ना ज़बरदस्ती की शादी जायज़ है इस्लाम में। इस्लाम में यही पसंद की शादी है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों से पूछें कि किस तरह का आपको जो है अपना हमराही जीवन साथी चाहिए, और जो है बच्चे बताएं और माँ बाप जो है दीन के लिहाज से जो है और अच्छा सा उनके लिए ढूंढें। यही इस्लाम में पसंद की शादी है और इसी को जो है जायज़ निकाह करार दिया गया है, और इसी में इज्जत है और इसी में बरकत है ऐसी ही शादियों। अल्लाह पाक हर माँ बाप और औलाद को दीनी और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और इसको फुल वॉच करिएगा और लाइक भी करिएगा, और मेरे चैनल नाइमास कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।